Hey, hello, sir. Can you hear me, Harshit? Hi guys, good evening. Sorry, due to some technical issue, the camera stopped in between. So yeah, guys, we can start. Good evening, everyone. Myself, Harshit, a drummer and recording engineer based in Delhi. I hope you guys are doing good and having great time. It's good to see you that we have so many people in today's session, and good to see young generation coming up for music, coming up to learn new instruments, new things. It's so good to see. Well, I request all of you to turn on your cameras, as I can see so many people. Those who haven't, please turn on your cameras and mute your mics in between. Mute your mics. If you have any doubts, write in the chat box. I'll take your doubts in the end. I'll answer your questions in the end. If you have something to say, please write in the chat box first, then only you will be allowed to speak. Okay, so let's start about the well, today's session is very interesting and one of my favorite, because I would like to share my story before starting today's session. Guys, please mute your mics. Yeah, I've muted everyone, so yeah, you can continue the session now. cool. So before starting, I would like to share my story as being the youngest. In fact, I'm not that old, and that old to share a lot of experience with you all. But if I am here, that's because of the people who have supported me. That's because of like, we have one of the greatest keyboard player we have in Delhi circuit, Mr. Vikrant sir, because of whom I am here. And thanks to the whole team of Front Row for giving me this opportunity, for sharing this experience of mine in terms of this home studio and being as a drum instructor with Front Row. Thanks to you. So before starting, I would like to say one thing. If you are getting into music, guys, patience is the key. Patience is the key to your success, to everything you will achieve in this industry, right? I would like to share my story, एंड मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूँगा ताकि यहाँ पर, एज आई कैन सी देर आर सो मेनी पीपल, सबको कन्वीनियंट रहेगा. सो बैक इन 2012 मैंने स्टार्ट किया था अपना म्यूज़िक करियर एज अ ड्रमर. एंड बिफोर दैट, उससे पहले मैंने तबला सीखा, कॉन्गो सीखा. उसके बाद मैं धीरे धीरे ड्रम्स पर आया, मैंने ड्रम्स सीखना शुरू किया. बट ड्रम्स एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और उसका जो साउंड लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि उसको एक नॉर्मल आप घर में प्ले नहीं कर सकते विदाउट एनी साउंड ट्रीटमेंट, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दी अकूस्टिक किट. जो हमारे पास नॉर्मल ड्रम्स आप लोग देखते हैं, शोज़ में देखते हो, आपने इंटरनेट पे देखा होगा, ड्रम कवर्स में देखा होगा, उसको आप नॉर्मल रूम में प्ले नहीं कर सकते, राइट? ड्रम्स को प्ले करने के लिए आपको एक रूम का रिक्वायरमेंट होता है, एक सेपरेट रूम का रिक्वायरमेंट होता है जो ट्रीटेड हो. ट्रीटेड कैसा हो? उसमें साउंड ट्रीटमेंट हो रखा हो. 2012 में मैंने स्टार्ट किया. 2014 में मैंने ड्रम्स को और सीरियसली लेना शुरू किया. देन आई गॉट माई इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड्स इन 2015, राइट? 2015 में मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आया. उससे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलवाया कि नहीं, दिस थिंग इज़ वेरी गुड, बिकॉज
लाइक बीइंग इनटू अ फैमिली वो जहाँ पर सब लोग जॉब कर रहे हैं, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट yes we can make our career in music too, right? So somehow I got my instrument in 2015 में मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आया जो कि मेरे पास घर में जगह नहीं थी अपना इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए। तो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट अपने कॉलेज में रखा। कॉलेज का जो म्यूज़िक रूम था, अपनी सोसाइटी को मैंने वो इंस्ट्रूमेंट दिया। वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता था जब क्लासेस ख़त्म होती थी। इनफैक्ट क्लासेस तो क्या ख़त्म होती थी, 0% अटेंडेंस के साथ आई यूज टू स्टे इन म्यूज़िक रूम ओनली। मेरा 100% अटेंडेंस म्यूज़िक रूम में रहा क्लासेस की बजाय। तो मैं आफ्टर 2 लाइक सोसाइटी की प्रैक्टिस होने के बाद आई यूज टू प्रैक्टिस। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम माई कॉलेज। लाइक अ ह्यूज थैंक्स टू द पीपल ऑफ माई सोसाइटी, ऑफ माई बैंड, जिन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि आज मैं आपके साथ आगे जो शेयर करने वाला हूँ, उनसे मुझे मोटिवेशन मिला। उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं, यू कैन डू दिस, यू कैन प्ले ड्रम्स वेरी वेल, यू शुड गो फॉर इट, आपको सीखना चाहिए। तो वहाँ से मेरे को पुश मिला। वहाँ से करते करते देन आई ग्रेजुएटेड। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया अपना ड्रम्स एक रेंटेड अपार्टमेंट में। ओके, रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट किया जहाँ पर मेरा कोई राइट नहीं है उस जगह पर, बट आई हैड टू प्रैक्टिस एनी हाउ, मेरे को जैसे भी प्रैक्टिस करना था। सो आई शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस जहाँ पर साउंड ट्रीटमेंट ऑब्वियसली नहीं था, बिकॉज साउंड ट्रीटमेंट आपको कहीं पर करने को मिलेगा, कहीं पर करने को नहीं मिलेगा इन ए रेंटेड अपार्टमेंट और रेंटेड हाउस और रेंटेड रूम। जो लोग मेरे साथ डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हैं, जो अपने होम टाउन में नहीं हैं, मैं उनके लिए भी आज की जो सेशन है उसमें सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि वो लोग कैसे साउंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो रेंट पर रहते हैं। सो आई शिफ्टेड इन ए रेंटेड अपार्टमेंट जहाँ पर लड़ाई हुई, प्रैक्टिस नहीं करने को मिलता था। देन अगेन after some time, after 2-3 years, I saved some amount of money. Then I got an electronic kit which is right next to me. I got a decent electronic kit, Roland, जिसका शोर नहीं होता, एक ऑल्टरनेट है मार्केट में अकूस्टिक किट्स का, जिसको आप हेडफोन में आप यूज़ कर सकते हैं। हेडफोन्स में ही आपका वॉल्यूम रहेगा, बट उसका भी कुछ शोर रहता है। शोर कैसा, जैसा आप किसी चीज़ को बीट कर रहे हैं, लाइक यू कैन से आप किसी लकड़ी की स्टिक से आप किसी को बीट कर रहे हैं या हैमर से हल्का ठोक रहे हैं, वैसा साउंड रहता है, विच इज़ बियरेबल टू सम अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, बट आफ्टर दैट वो परेशानी रहता ही रहता है। सो बीइंग अ ड्रमर आई हैड टू फेस सो मेनी इश्यूज कि मेरे को एक साउंड ट्रीटेड रूम चाहिए, मेरे को एक स्टूडियो चाहिए ही चाहिए जिसमें मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, जिसमें मैं अपना पूरा दिन म्यूज़िक सुन पाऊँ। बिकॉज बीइंग अ म्यूजिशियन, आप जितना एक इंस्ट्रूमेंट सीखने के उससे पर्पस से सीखेंगे, जब आप एक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं जितना उससे सीखेंगे, उसके साथ साथ आप, मैं कहता हूँ 45 और 50% आप म्यूज़िक सुनने से भी सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप वो इंस्ट्रूमेंट आप किसी टीचर से सीख रहे हैं तो सारा आपको नॉलेज वहीं से आने वाला है, नहीं। आप सॉन्ग्स सुनेंगे, डिफरेंट आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करोगे, उससे भी आप बहुत कुछ सीखोगे। सो मेरे को कुछ ऐसा रूम चाहिए था। सो नाउ आफ्टर लाइक वेटिंग फॉर यू कैन से 2014 से मैंने कोशिश किया, इनफैक्ट 2012 से मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास 2015 में आया। ड्रम्स, फर्स्ट ड्रम्स, ओनली ड्रम्स, नॉट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, नॉट एनी थिंग यू आर सीइंग हेयर। जो लैपटॉप है मेरे पास, स्क्रीन है पीछे, मिडी कीबोर्ड है, साउंड कार्ड, वट एवर इंस्ट्रूमेंट आई हैव टुडे इन माय लाइफ, जो भी मेरे पास आज है, वो आप देखिए 2012 से आज 2021 है। कितना टाइम हो गया? 9 ईयर्स। आफ्टर 9 ईयर्स आई हैव ईच एंड एवरीथिंग। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं उस टाइम पर ड्रीम करता था, जो मैं सोचता था, सपना देखता था। ठीक है, दैट्स बिकॉज कुछ मेरी भी चॉइस है। मेरी तरह कई आप लोग भी सोचते होंगे कि जो चीज़ है मैं खुद से कमाऊं, खुद से उस चीज़ को खरीदूं, उस चीज़ को जोड़ूं, मैं अपने पेरेंट्स को हैप्पी करूं, अपने पेरेंट्स को मैं ये ट्रस्ट दिलाऊं, नहीं, आई कैन डू दिस, आई एम कैपेबल इनफ
to do this. I am capable enough to have this thing in my life. मैं खुद से कर सकता हूँ, मैं खुद से करके दिखाऊंगा. तो ये चीज़ मेरे अंदर थी. 2021 में now I have my own studio, जिसका मैं आपको लास्ट के 10-15 मिनट्स में टूर दूंगा. जो मेरे साथ है, दिस इज़ आवर रिकॉर्डिंग बूथ, जहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं, सारा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, और जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं, जो साउंड ट्रीटेड रूम है. बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है, जो साउंड प्रूफ रूम बनाया जाता है, वो मेरे साथ पीछे है मेरे. मैं आपको वो भी टूर दिखाऊंगा. आज मेरे पास वो भी है. आज मेरे पास ये मेरा पर्सनल रूम भी है, वेयर आई एम सिटिंग, राइट. यहाँ पर मैं अपना प्रैक्टिस कर सकता हूँ. आई कैन लिसन टू द सॉन्ग्स ऑल डे एवरी डे. सो मेरे पास पीछे स्टूडियो है, जैम पैड है, जहाँ पर लोग प्रैक्टिस करने आते हैं. बहुत अच्छे म्यूजिशियंस आते हैं. इनफैक्ट मैं विक्रांत सर जो अभी सेशन देख रहे हैं, आई डोंट नो वेदर ही इज़ इन द सेशन राइट नाउ और नॉट, बट उनसे भी मैं यहीं पर मिला और बहुत अच्छे म्यूजिशियन से मिला. अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव माई सेपरेट रूम, जो मेरा होम स्टूडियो है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा. सो इट टुक टाइम, इट टुक सम अमाउंट ऑफ टाइम एंड अबव ऑल माई पेशेंस. मुझे कई कई जगह लगा नहीं यार, अब नहीं हो सकता ना, अब नहीं, अब हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर, अब नहीं कर सकते. लाइक आफ्टर सो मेनी डिनायल्स, आफ्टर सो मेनी फेलियर्स, नाउ आफ्टर 9 years आई हैव ईच एंड एवरीथिंग. आज मेरे पास वो सब कुछ है बाय गॉड्स ग्रेस, जिसका मैं सपना देखता था, राइट. सो दैट्स अ लिटल थिंग अबाउट माई सेल्फ, अ लिटल स्टोरी अबाउट माई सेल्फ. ड्रम्स के बारे में फिर कभी बात करेंगे. इनफैक्ट इन द ड्रम सेशन आई टॉक अ लॉट अबाउट माय लर्निंग्स, माय एक्सपीरियंसेस. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. as the topic of today's session is like how to build a home studio, right. Home studio में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. लाइक स्टूडियो एक जो वर्ड है, उसका मतलब बहुत बड़ा है. दैट single word has a very big meaning, right, in different aspects, according to different people, according to your mindset, your vision. but हम लोग आज वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जहाँ पर आप बहुत छोटे बजट से लेकर अच्छे बजट तक के स्टूडियो आप सेटअप कर सकते हो, राइट. चाहे आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, मैं उसका भी आपको सारे सॉल्यूशंस देने वाला हूँ. इनफैक्ट द प्लेस आई एम सिटिंग इन राइट नाउ is not mine, it's on rent, but I am capable enough to bear the expenses, to have all the equipments, all the things at this place for my fraternity. मैं अपने म्यूजिशियन फ्रेंड्स के लिए मेरे पास आज यहाँ पर सब कुछ है, जो लोग यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी इक्विपमेंट्स मैं लिस्ट कर देता हूँ, उसके बाद विल टॉक अबाउट दी स्पेक्स. हम लोगों को जो जनरल स्पेक्स चाहिए होता है एक होम स्टूडियो बिल्ड करने के लिए, वो क्या रहने वाला है. आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स गाइज. मुझे पता है चैट्स में मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं. हम लोग ये एंड में लेंगे बिकॉज आई कांट टेक द डाउट्स इन बिटवीन, बिकॉज आई हैव टू फेस this way and show my things. Okay, so starting from the home studio setup, the first thing we need is to have a positive mindset. Yes, this is my thing, now I'll be doing all my things, now I'll be producing my things. अब मैं अपना सारा काम, अपना mindset जो मेरा आगे का future होने वाला है, वो अब मैं इससे लेकर चलने वाला हूँ. फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट, राइट. पॉजिटिव माइंडसेट कि नहीं, अब मुझे पेशेंस के साथ इसी लाइन में आगे जाना है, अब मुझे यहीं पर अपना कुछ, अपना जो आर्ट शोकेस करना है. नाउ आई हैव टू शो माई सेल्फ, मुझे खुद को इस वर्ल्ड को दिखाना है कि मैं कैसा आर्टिस्ट हूँ, राइट. नाउ आफ्टर दैट, टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर्स, फर्स्ट थिंग यू नीड इज द कंप्यूटर सेटअप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर. आपको सबसे पहली चीज़ वो चाहिए, राइट. नाउ उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो उसमें आपको रिक्वायरमेंट है वो क्या है. एंड गाइस, आप साथ में कॉपी और एक रजिस्टर, नोटबुक या नोट पैड, वट एवर यू हैव, आप ले लीजिए. साथ में एक पेंसिल और पेन ले लीजिए, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स जो मैं बताने वाला हूँ. आप उसको नोट कर लोगे तो बेटर रहेगा, ताकि आप चीज़ें भूलो मत.
सॉरी, ताकि आप भूलें ना लास्ट में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कवर करने वाले हैं इन वन सेशन ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ डेस्कटॉप, लैपटॉप और पीसी कंप्यूटर सेटअप, जिसमें आपका जो प्रोसेसर रहेगा वो i5 और i7 रहेगा मिनिमम. ठीक है, उसके साथ साथ मिनिमम रैम जो रहने वाला है 8 GB रहने वाला है. 8 GB से ऊपर आप करते हो तो वो आपका चॉइस है, राइट. i5 i7 else we can go for AMD Ryzen सीरीज एज वेल, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. Ryzen 2400 से नीचे हम लोगों ने नहीं जाना, AMD Ryzen 2400 से नीचे नहीं जाना, और रैम में 8 GB तो मिनिमम हम लोगों को यूज़ करना ही करना है, DDR4. ओके, दीज आर दी टू थिंग्स विच यू नीड. उसके साथ साथ आप कैबिनेट जो है स्टॉक ले सकते हैं. उसके साथ बहुत सारे मार्केट में डेकोरेटिव हैं, लाइट्स वाले कैबिनेट्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन योर बजट, राइट. बट द बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको रहने वाला है, वो प्रोसेसर जो आप लेंगे वो मिनिमम i5 i7 और उससे ऊपर आपका चॉइस है. मैं मिनिमम से बात करूंगा. 8 GB रैम रहेगा हमारा, ठीक है. उसके साथ साथ आप एक आपका नॉर्मल स्क्रीन रहेगा. ये हो गया आपका डेस्कटॉप, राइट. नाउ कम्स दी साउंड कार्ड, जो हमारा नाउ व्हाट साउंड कार्ड होता क्या है. साउंड कार्ड एक डिवाइस है, इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स योर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल. ठीक है, आप कुछ गा रहे हैं, उसको वो डिजिटली कन्वर्ट करके आपके पास सॉफ्टवेयर में देगा. वो आपका साउंड कार्ड है, राइट. साउंड कार्ड में आपके पास क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं. साउंड कार्ड से आप अपने जो मॉनिटर स्पीकर्स हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो, ये दो जो स्पीकर्स पड़े हैं मेरे पीछे, ये मॉनिटर स्पीकर्स हैं जिनसे हम लोग सुनते हैं कि क्या रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें हम लोग सारा मॉनिटर करते हैं एक्चुअल में हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं. साउंड कार्ड से आपका ये भी यूज़ होता है, इसका भी कनेक्टिविटी है साउंड कार्ड से. उसके साथ साथ हमारा एक माइक के इनपुट्स आते हैं साउंड कार्ड में. नंबर ऑफ माइक्स आप कितने रिकॉर्ड करना चाहते हैं एट वन टाइम, वो रहता है. उसके साथ साथ आपका एक उसमें हेडफोन का जैक भी रहता है, जिससे आप हेडफोन में भी सुन सकते हैं. आई सॉ वन क्वेश्चन इन बिटवीन, बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे पास आ गया था कि हम लोग हेडफोन क्यों यूज़ करते हैं. सो हेडफोन हम जो रिकॉर्डिंग में यूज़ करते हैं, उसका पर्पस होता है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर एक वोकलिस्ट रिकॉर्ड कर रहा है तो आपके पास हेडफोन्स में बाकी का म्यूज़िक रहेगा, राइट. बाकी का म्यूज़िक कैसे, जो गिटार्स हैं उसमें कीबोर्ड है या परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रम्स हैं, तो वो सब उसमें रहने वाला है, ताकि वोकलिस्ट को उस पर रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प मिले कि एक्चुअल में गाना किसके साथ है. उसके साथ साथ उसमें एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है, विच इज़ योर क्लिक, विच इज़ योर मेट्रोनोम. मेट्रोनोम क्या है. मेट्रोनोम एक डिवाइस है जो हमें स्पीड को मेंटेन करने में हेल्प करता है. स्पीड का टेक्निकल टर्म है टेम्पो. ओके, सो हमारे पास हेडफोन्स में क्लिक रहता है, बेसिकली मेट्रोनोम रहता है, जिस पर हर म्यूजिशियन को रिकॉर्ड करना होता है. क्योंकि हम एक सॉन्ग जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो एक फर्स्ट टारगेट ये रहता है कि कोई भी म्यूजिशियन किसी और से अलग नहीं प्ले करेगा, राइट. वो सब लोग साथ में प्ले करेंगे. every musician has to be together, every musician should be tight means उसको बिल्कुल क्लिक पर प्ले करना है, राइट. दैट्स वाई अगर आप कोई और इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो आपको मेट्रोनोम के बारे में और डिटेल में पता लगेगा. जिन्होंने मेरे ड्रम्स के सेशन अटेंड करे हैं उनको आइडिया है कि मेट्रोनोम क्या है और एक्चुअल में वो साउंड कैसा करता है. ओके, मैं एक दिखा भी देता हूँ. मेट्रोनोम आज की डेट में आपके पास डिजिटली अवेलेबल है, ठीक है. पहले डिवाइस आता था, ना आपको मेट्रोनोम कुछ ऐसा मिलेगा. आप प्ले स्टोर या अमेज़न ऐप स्टोर पर जाकर प्रो मेट्रोनोम डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ये मिलेगा, दिस इज़ योर मेट्रोनोम, जिसमें आपका क्लिक साउंड आता है, ठीक है. एल्स यू कैन चेंज भी कर सकते हैं साउंड 1 2 3 4, बेसिकली वो इसमें रहता है, वो हमारे हेडफोन्स में रहता है. तो साउंड कार्ड हो गया. साउंड कार्ड में आपको मैं कंपनीज बता देता हूँ जो बजट में रहने वाली हैं, वो कौन सी हैं. उसके साथ साथ हम लोग जैसे जैसे बजट बढ़ेगा उसके हिसाब से मैं आपको कंपनीज बता दूंगा जो बेस्ट साउंड कार्ड्स हैं.
जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जो बेस्ट फॉर दी बजट है वो क्या रहेगा, अगर आप बजट पर टाइट हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से लाइक मिनिमम टू हम लोग ऊपर जाएंगे। जो अगर आप बजट में टाइट हैं तो फर्स्ट साउंड कार्ड जो मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा फोकस राइट स्कारलेट। फोकस राइट स्कारलेट 2i2। सेकेंड विल बी प्रीसोनस। प्रीसोनस के 2 चैनल आप साउंड कार्ड कोई भी ले सकते हैं। उसमें जो ब्रांड्स रहेंगे, बेरिंजर रह सकता है, बेरिंजर UMC 404 HT, स्टेनबर्ग UR22 और एल्स एम ऑडियो का 2 चैनल जो आपका साउंड कार्ड रहता है आप वो ले सकते हो। राइट, एम ऑडियो, स्टेनबर्ग, बेरिंजर, फोकस राइट स्कारलेट एंड योर प्रीसोनस। इन में से आप कोई भी ले सकते हैं 2 चैनल, अगर आपका बजट कम है और आप सिर्फ अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए आप अपना होम स्टूडियो सेटअप कर रहे हो तो। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग बजट इंक्रीज करें, देर आर वेरी गुड साउंड कार्ड्स बाय ऑडियंट, मोटू एंड SSL 2+, जो 2 चैनल के साउंड कार्ड्स हैं ये भी सारे, बट इनकी क्वालिटी में डिफरेंस है। मैं वो क्वालिटी में डिफरेंस भी आपको बताऊंगा क्या है और क्यों है। उसके बाद अगर हम लोग स्टैंडर्ड लेवल पर चले जाते हैं, हम लोग अगर जो मार्केट में स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ हो रही हैं फॉर दी कमर्शियल पर्पस, फॉर दी बिजनेस पर्पस, तो उसमें अपोलो UAD, अपोलो के साउंड कार्ड्स अवेलेबल हैं, अपोजी के साउंड कार्ड्स अवेलेबल हैं। आप इसमें 2 चैनल ले सकते हैं अगर आपका यूसेज कम है, उसके चैनल की रिक्वायरमेंट आपको कम है। अगर आप ड्रम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 8 चैनल तो चाहिए ही चाहिए। आपको 8 चैनल का इंटरफेस खरीदना ही पड़ेगा। नाउ उसमें फ़र्क क्या आता है मैं आपको बता दूं। जो अगर आप जितना अच्छा आप साउंड कार्ड लेंगे उसके प्री एम्प्स में आपको फ़र्क मिलेगा। प्री एम्प क्या है? प्री एम्प आपको अलग से नहीं लेना, साउंड कार्ड के अंदर ही आता है प्री एम्प। जितना अच्छा साउंड कार्ड होगा उसमें उतना अच्छा प्री एम्प होगा। अब प्री एम्प क्या है? प्री एम्प जो है आपका जो लेवल आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट का लेवल आ रहा है, अगर वो लो है तो उसको स्टैंडर्ड लेवल तक, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर रहा है, जिस लेवल पर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको वो उस लेवल तक बूस्ट कर देगा। राइट, प्रीएम्प्स आपके लो लेवल्स को, लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स पर बूस्ट करता है। ठीक है, जिस स्टैंडर्ड लेवल पे आपका रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है रिक्वायरमेंट है उसका। प्रीएम्प्स का मतलब ये होता है। तो आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू फर्दर थिंग्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जो स्टूडियो है वो आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसमें सेव करके एक ही बारी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए लॉन्ग रन में। आपको लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। आप 1 टाइम में इन्वेस्ट करिए। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, मैं ये नहीं कहता आप पूरा सेटअप एक बारी में लीजिए, आप अलग अलग लीजिए। आप साउंड कार्ड पहले ले लीजिए, मॉनिटर स्पीकर्स बाद में ले सकते हैं, या आपका जो भी कॉल रहता है। बेसिक हम लोगों को जो पहले रिक्वायरमेंट रहेगा वो एक कंप्यूटर का रहेगा, साउंड कार्ड रहेगा, एक कंडेंसर माइक रहेगा और एक हेडफोन्स रहेगा। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं आप बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, बट इनको जब आप ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उसमें एक ही बार में इन्वेस्ट करिए और एक ही बार में अच्छा प्रोडक्ट लीजिए। राइट, अगर आप किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो आपकी जो एंड प्रोडक्ट है, जो आपका लास्ट में जो आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, जो लास्ट में आपको आपका सॉन्ग मिलने वाला है, उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। राइट, तो आप एक ही बार में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को अच्छा ले लेंगे, किसी एक चीज़ को बहुत ही नीचे का ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। नहीं, हमको बैलेंस रख कर चलना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, मैं उसके आगे बताता हूँ। माइक्रोफोन्स हैं हमारे पास, कंडेंसर माइक्रोफोन। नाउ हमारे पास 2 तरीके के माइक्रोफोन्स होते हैं, एक होता है कंडेंसर, एक होता है डायनेमिक। राइट, कंडेंसर का जो गेनिंग पावर होता है, जो उसका रिकॉर्डिंग वाला कैपेसिटी है, जो उसका अपने आसपास साउंड को रिकॉर्ड करने का कैपेसिटी है, वो डायनेमिक से अच्छा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडेंसर में अंदर माइक के अंदर हमारे पास एक डायफ्राम रहता है। ठीक है, मैं इसमें दिखा भी देता हूँ आप लोगों को खोल के। वेट अ मिनट।
सॉरी दिस कांट बी ओपन। मैं आपको दूसरा माइक दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो इसके अंदर एक डायफ्राम रहता है जो हमारे पास कंडेंसर माइक्स में गोल्ड प्लेटेड होता है, ठीक है। वो एक्चुअली गोल्ड प्लेटेड होता है, क्यों? क्योंकि गोल्ड का जो रिकॉर्डिंग जो उसमें गोल्ड में आएगी वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो आप कंडेंसर माइक जब भी लेंगे उसमें एक तो आपका वोल्टेज भी जाता है, 48 वोल्ट्स रहता है उसमें, ठीक है। और बेसिकली गोल्ड में कंडक्शन बहुत अच्छा होता है अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो। और इसलिए कंडेंसर माइक्स जो है हम लोग रिकॉर्डिंग्स में प्रेफरेबली यूज़ करते हैं कंपेयरिंग टू डायनेमिक माइक्स, ठीक है। कंडेंसर माइक के साथ साथ ही हमें रिक्वायरमेंट आ जाती है रिकॉर्डिंग स्टूडियो की, क्योंकि हमारे पास अगर आप कंडेंसर माइक में एक टाइम पर वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ रूम में कुछ भी नॉइज़ होगा तो उसमें वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड वो कहाँ पर आपको प्रॉब्लम देगा? जब आप उसको मिक्स करोगे, जब आप उसको प्रोसेस करोगे। तो कंडेंसर माइक्स के मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। AKG के AKG P120 जो आपके 10,000 से नीचे के माइक्स हैं, AKG P120, behringer C1, ऑडियो टेक्निका 2020 जो आपके 10,000 से नीचे रहने वाले हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड माइक्स आ जाते हैं जिसमें है रोड NT1, लॉटन ऑडियो है हमारे पास, LA220, लेविट का है LCT 440 और 240, एंड SE इलेक्ट्रॉनिक्स है X1S। ये आपके स्टैंडर्ड माइक्स हैं जो आपके 25,000 तक के माइक्स हैं। सिंगल माइक आपको इतने तक का पड़ेगा। उसके बाद आपके जो स्टैंडर्ड लेवल माइक्स आ जाते हैं जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माइक्स हैं, वो हैं टेलीफंकन एंड AKG के जो हाई ग्रेड मॉडल्स हैं वो हैं। उसके बाद मैनले के हैं माइक्स, न्यूमन है। दीज आर दी कंपनीज जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में यूज़ होती हैं। इनफैक्ट आपको जो भी मैं ब्रांड्स बता रहा हूँ सब में आपको एक एंट्री लेवल माइक भी मिलेगा, उसके साथ साथ एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का भी माइक मिलेगा। एंड जो प्राइस रेंज में डिफरेंस है वो ऑब्वियसली क्वालिटी में डिफरेंस लाएगा ही लाएगा, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीज़ें अब तक हो चुकी हैं। एक आपका कंप्यूटर हो गया जो आपका डेस्कटॉप रहने वाला है, उसके बाद साउंड कार्ड हो गया, एंड थर्ड इज योर माइक्रोफोन, राइट। फोर्थ थिंग which is necessary for production for your home studio setup is your monitor headphone, right? Because अगर आपके पास ये चीज़ें रहती हैं तो आप अपने घर में कुछ ना कुछ बेसिकली, अगर देसी भाषा में बोले तो जुगाड़, राइट, DIY बेसिकली जो सेटअप्स होते हैं आप उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो। हेडफोन्स, माइक, साउंड कार्ड एंड योर डेस्कटॉप। नाउ मॉनिटर हेडफोन्स में कौन कौन से अच्छे आपको मिल जाएंगे? एंट्री लेवल में ऑडियो टेक्निका का M20X मॉडल आता है, उसके साथ साथ सेनेइजर HD 200 मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं एंट्री लेवल में, लाइक अराउंड 5,000 इनका कॉस्ट रहेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड जो है वो M50X, जो मेरे पास ये मॉडल है, दिस इज़ योर ऑडियो टेक्निका M50X, बेयर डायनेमिक DT 770 एंड 990। मेरा प्रेफरेंस बेयर डायनेमिक को रहेगा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आप ऑलरेडी प्रोडक्शन में हैं किसी लेवल पर। बेयर डायनेमिक इज़ दी बेस्ट, आई कैन से बेयर डायनेमिक DT 770 एंड 990। वो आपका कॉल है आप कौन सा मॉडल लेते हैं, बट दोनों में से कोई भी लेंगे, दीज आर दी बेस्ट फॉर योर होम स्टूडियो सेटअप, ओके। For the industry standards, we have Shure SRH 1840 and Sennheiser HD 800S। अब इन वाले हेडफोन्स में आपको क्या बेनिफिट मिलता है जो आपके हायर रेंज होते हैं, या जो मैंने ये दो मॉडल्स मेंशन करे हैं, इसमें आपको हेडफोन्स जो है पीछे से ओपन मिलेगा। ओपन कैसे? यहाँ पर ग्रिल लगा होगा। उसका बेनिफिट क्या है? नाउ आप हेडफोन्स को ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते, वो आपको थोड़े टाइम बाद ईयर ड्रम में पेन हो जाएगा, जो आपके कान का पर्दा है उसमें पेन होगा। और उसके साथ साथ आपको बहुत कम्पैक्ट साउंड मिलेगा क्योंकि आपके ईयर के आसपास पूरा पैक हो चुका है, हेडफोन जो है पूरा ऐसे पैक्ड है, तो आपको बहुत कम्पैक्ट साउंड मिलने वाला है। बट जो ये दो हेडफोन्स हैं, श्योर SRH 1840 एंड सिनेजर 800S, इसमें आपको ओपन मिलेगा जिसमें आपको बहुत वाइड साउंड मिलेगा। एक तो ओपन है, ठीक है, उसके साथ साथ कंफर्ट मिलेगा, एंड इनका फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत अच्छा है, इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आपको मिलेगा। नाउ कम्स योर डॉ।
डॉ क्या है? दैट्स योर डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो आपका रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, जिस पे आप सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने वाले हो, राइट। अगर आप एप्पल का लैपटॉप लेते हो तो एप्पल में आपके पास गैराज बैंड आता है, जो उसमें आप बहुत बेसिक लेवल का उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद उसमें आता है लॉजिक, राइट। लॉजिक जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, लॉजिक में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे और भी हैं, जो जैसे एबल्टन, रीपर, क्यूबेस एंड एफएल स्टूडियो, राइट। ये आपके रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इक्विपमेंट्स में ये नहीं कहूँगा कि आप यही यूज़ करिए या आप इसी को यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छा आउटपुट दे पाएंगे, नहीं। हर सॉफ्टवेयर का एक अलग आउटपुट है। आप किस पर अपना बेस्ट दे सकते हैं, या आपको समझने में कौन सा आसान है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, काम करने में किस में ज़्यादा आपको इजी लग रहा है, आप वो यूज़ करिए, आप वो चूज़ करिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यही यूज़ करिए या वो यूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं मॉनिटर स्पीकर्स, ठीक है। मॉनिटर स्पीकर्स में अगर आप बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल वाले अगर स्पीकर्स यूज़ करते हो तो उसमें आपके पास मैकी के आते हैं, मैकी CR3X, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रीसोनस एरिस 3.5। उसके साथ साथ है एलिसिस एलिवेट। ये आपके बिल्कुल एंट्री लेवल मॉनिटर स्पीकर्स हैं जो आपको 15,000 से नीचे नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड अगर हम लोग देखें तो उसमें आपको प्रीसोनस का एरिस 4.5 और एरिस 5 आप ले सकते हो। उसके साथ साथ HS5 है, KRK रॉकेट 5 जनरेशन 4 और जनरेशन 3, आप जो लेना चाहें। पर अगर आप आज के रिक्वायरमेंट और उसमें फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे तो जनरेशन 4 बेटर है। उसमें जो आपका मॉनिटर स्पीकर है कैलिब्रेट कर लेता है खुद को, वो बेसिकली आपको रूम का जो ट्रीटमेंट है, आपको रूम को, हमको मॉनिटर स्पीकर्स को बिल्कुल फ्लैट पर सुनना चाहिए। हम लोग उसमें कुछ बेस नहीं बढ़ा सकते अलग से, या उसमें हम लोग हाइज नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज आप ट्रैक को वैसा ही आगे रिकॉर्ड करके प्रोड्यूस कर देंगे, आप वैसा ही मिक्स मास्टर कर देंगे, तो हमको उसको फ्लैट रखना होता है। जनरेशन 4 में आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको उसको खुद से ट्यून नहीं करना पड़ेगा, आप मॉनिटर में ऑप्शन दिया हुआ है पीछे, आप उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो मॉनिटर स्पीकर आपका खुद ब खुद फ्लैट पर ट्यून हो जाएगा, जो उसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अ, अभी बहुत अच्छा और बजट में जो बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है वो है कैली ऑडियो। उसका LP6 मॉडल है, 6 इंचेस का मॉनिटर है वो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट फॉर दी बजट है। एंड आपको मिल जाएगा वो 30,000 और 31,000 के अराउंड उसका पेयर, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप वो ले सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, गो फॉर दैट। मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा इस वाले सेक्शन में आप कैली ऑडियो को प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद जो हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं वो आ जाते हैं जेनेलिक, ईव ऑडियो, एडम्स, डायना ऑडियो, फोकल, न्यूमन, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब भी आप अपना मॉनिटर स्पीकर परचेज कर रहे हो, मैं रेकमेंड करूंगा उसके साथ मॉनिटर स्पीकर्स के आप स्टैंड ज़रूर लें, ठीक है। आप उसको टेबल पर रखोगे तो उसका ड्रॉबैक क्या मिलेगा, मे बी आपने ये एक्सपीरियंस करा हो या ना करा हो, या आपने कभी ऑब्जर्व करा हो अपने घर में, आप स्पीकर को जब आप अपने टेबल के ऊपर रखते हो तो टेबल के अंदर भी वाइब्रेशन आती है, राइट। अगर आप अपना वूफर टेबल के ऊपर रखोगे और टेबल के नीचे खाली है, बिल्कुल खाली है, तो आपको वहाँ पर बेस ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बेस है, जो उसका लो एंड है, उसने एक वेव प्रोड्यूस करी है टेबल के अंदर जो उस चीज़ को एनहांस कर रही है, तो हमें वो चीज़ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अवॉइड करनी है, राइट। एल्स आपका टेबल इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो उसका वाइब्रेशन जो है नीचे ट्रांसमिट ना हो, नीचे ना आ जाए। अब यहाँ पर जो ये टेबल है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें मैं टेबल पर इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज दिस रूम इज़ वेरी कम्पैक्ट एंड वेरी स्मॉल, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसका वाइब्रेशन नीचे तक नहीं जाता, ठीक है। नाउ
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मोस्ट ऑफ दी लाइक बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं या इंजीनियर्स भी कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, हमारे पास कंप्यूटर सेटअप आ गया, हमारे पास माइक आ गया, हमारे पास साउंड कार्ड आ गया, हमारे पास मॉनिटर हेडफोन्स आ गए, मॉनिटर स्पीकर्स आ गए, बट इनकी जो कनेक्टिविटी है, जो ये आपस में कनेक्ट करेंगे, वो किससे करेंगे? वो करेंगे केबल से, राइट? हम लोगों को ये इंश्योर करना है, हम लोगों को ये हमेशा दिमाग में रखकर चलना है कि हमारे केबल्स जो हैं वो हमेशा टॉप क्वालिटी होना चाहिए, राइट? अगर आप ये सब चीज़ें अच्छी ले लेंगे और आपकी केबल्स में अगर प्रॉब्लम है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपना इक्विपमेंट के ऊपर डाउट करना शुरू कर देंगे कि आपका इक्विपमेंट में कुछ खराबी है या आपको गलत प्रोडक्ट दिया गया है। बट ऐसा नहीं होगा, आपको केबल्स अपने चेक करने पड़ेंगे उस टाइम पर, राइट? और वो बहुत हेडेक वाला टास्क है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं लगता कौन सा केबल खराब है और कौन सी जगह से खराब है, राइट? तो आप हमेशा प्रेफरेंस दो कि आप अच्छा केबल लो। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास बेस्पेको है, हॉक है, होसा है, एंड नाउ डेज अभी लाइक मैं अपने एक फ्रेंड की एक कंपनी है द टोन डोर, राइट? आप उनके केबल्स ले सकते हैं। केबल्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट जो अच्छे केबल्स हैं उसमें आपको गोल्ड प्लेटेड जैक्स मिलेंगे, क्योंकि उसका कंडक्शन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? आप अगर उसके जैक्स गोल्ड प्लेटेड लोगे तो आपको बहुत अच्छा साउंड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप अपने सारे केबल्स गोल्ड प्लेटेड ले लो, या उसमें से आपको लगता है जो माइक का केबल है वो गोल्ड प्लेटेड हो गया, उसके साथ साथ आपका जो मॉनिटर स्पीकर्स और साउंड कार्ड है वो गोल्ड प्लेटेड जैक टू जैक केबल्स हो गए, इनफ है, ठीक है? वो आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगर इसके साथ साथ आप मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा पे करना पड़ेगा जो उसका कॉस्टिंग आया होगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में केबल्स खरीदना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक केबल का बंडल लीजिए। आप उसमें कनेक्टर्स अलग से परचेज करके या तो आप केबल्स खुद बना सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर उसका जो सोल्डरिंग होता है वो करवा सकते हो, राइट? उसमें आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आपका स्टूडियो बनाने का मन है, आप ड्रम्स रिकॉर्ड करना चाहते हो या एक टाइम पर आप 4 म्यूजिशियंस रिकॉर्ड करना चाहते हो परकशन में, उसमें आपके पास 8 केबल्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है? उसके साथ साथ हेडफोन के जो केबल्स जाएंगे, एक्सटेंशन जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप केबल का बंडल लीजिए, उसको आप केबल को खुद बनाइए। दो ब्रांड्स मैं रिकमेंड करूंगा, वन इज SR एंड द अदर वन इज न्यूट्रिक। आप दो केबल्स और कनेक्टर्स भी दोनों के सेम मिल जाएंगे आपको, SR और न्यूट्रिक के केबल्स और कनेक्टर्स। मार्केट जो आपके होम टाउन में जहाँ पर भी लोकली आपको ये केबल्स आपको लगता है वो केबल का ही मार्केट है डेडिकेटेडली या साउंड से रिलेटेड मटेरियल मिलता है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो, राइट? नाउ योर डायनेमिक माइक्स। अब डायनेमिक माइक में हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट जो मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूँगा, वन इज़ योर SM58, सेकेंड इज़ योर SM57, देन वी हैव Sennheiser E845, E945 एंड SE Electronics V7। ये कुछ माइक्स हैं, SM58, SM57, ये दोनों माइक्स श्योर कंपनी के हैं। उसके साथ साथ Sennheiser E845, E945 जो है आपके Sennheiser कंपनी के हैं। उसके साथ साथ SE इलेक्ट्रॉनिक्स का V7 मॉडल है। नाउ अब जो डायनेमिक माइक्स हैं ये आपके कहाँ यूज होंगे? जहाँ पर आप अपना उससे परकशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, या उससे आप कोई भी विंड इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है आपका जो कंडेंसर है उसमें बहुत ज़्यादा पीक आ रहा है, वहाँ आप डायनेमिक यूज़ कर सकते हो। या आपका जो वोकलिस्ट है उसका पिच बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ आप डायनेमिक यूज़ कर सकते हो, राइट? ये इन माइक से भी आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है। नाउ वी हैव ऑल द थिंग्स। अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन चीज़ होता है प्रोडक्शन में, जिससे हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट्स खुद प्ले कर सकते हैं। वो होता है ये मिडी। जो ये पीछे कीबोर्ड कैसियो देख रहे हैं आप, जिनको नहीं पता, ये मिडी है। मिडी कैसे चलता है? ये आप लैपटॉप से ऑपरेट करेंगे, इसमें कुछ भी आपके पास सैम्पल्स जो हैं इनबिल्ट नहीं आएंगे, जो एंट्री लेवल होते हैं हमारे उसमें। आप उसको USB केबल से कनेक्ट करके आप इसमें कुछ भी इंस्ट्रूमेंट को लेयर कर सकते हो, और आपके जो कीज हैं फिर वो आपको वही इंस्ट्रूमेंट का साउंड देंगे, ठीक है? मैं आपको
मिडीज के एंट्री लेवल के साथ साथ बहुत अच्छे जो मिडीज मार्केट में अवेलेबल हैं, पूरे वर्क स्टेशन है, मैं उनका मॉडल्स बता देता हूँ, कंपनीज बता देता हूँ। अकाई के आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ नेक्टर है, नोवेशन लॉन्च की है, एलिसिस है, एंड देयर इज वन मोर कंपनी, नेटिव कंप्लीट कंट्रोल। इसमें इन सारी कंपनीज में मैं रिपीट कर देता हूँ, अकाई, नेक्टर, नोवेशन, एलिसिस एंड नेटिव कंप्लीट कंट्रोल, एंड देयर इज वन मोर कंपनी आर्चुरिया। जो आपके ये सारे ब्रांड्स हैं, आप इसमें एंट्री लेवल से लेकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको बेसिक होम स्टूडियो सेटअप अगर करना है तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा अकाई एमपी के, एल्स नोवेशन लॉन्च की का MK3 आता है विच आर लाइक 25 कीज, एल्स यू कैन गो फॉर दिस नेक्टर इम्पैक्ट GX49। ये भी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए एंट्री लेवल के लिए अच्छे हैं, जो आपके 10,000 के अंदर अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे हो गए आपके इक्विपमेंट्स जो आपको ज़रूरी है रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई हार्डवेयर की बातें। अब उसके बाद आता है हमारे पास रूम क्या है, हम जिस रूम में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग जो अंदर साउंड प्रूफिंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में उसको कवर करूँगा आपके साथ। मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अब तक अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जो मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं ऑफ माय ओन रिकॉर्डिंग स्टूडियोज एंड ऑफ दोज जिनका मैंने इक्विपमेंट रेडी करवाया है, जिनको मैंने कंसल्टेंसी दिया है। ठीक है, so guys, starting from the, let me change my camera first. Yeah, so starting from the वोकल बूथ, जो आपको अपने घर में भी चाहिए होगा, जिसका रिक्वायरमेंट आपके घर में भी रह सकता है। ठीक है, या आई गेस नाउ इट्स क्लियर एंड बेटर, जिसका आपको रिक्वायरमेंट अपने घर में भी रह सकता है। ठीक है, वोकल बूथ, या आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, वेट अ मिनट, अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वोकल बूथ का रिक्वायरमेंट आपको वोकल्स की रिकॉर्डिंग के लिए रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको पहले एक चीप ऑप्शन दिखा देता हूँ जो आप इजीली खुद भी बना सकते हो। ठीक है, here we have, नाउ इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमारा वोकल बूथ है, इट्स नॉट दैट क्लियर, बट ये एक कार्टन है, किसी भी इक्विपमेंट का आप ले सकते हो, छोटा प्रेफर करिए जिसको आप अपने माइक स्टैंड पर माउंट कर पाओ। इसके अंदर अगर हम लोग, जो हमारे पास ये फोम अवेलेबल है, ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा आराम से, इसको आप माउंट करके, जैसा इसमें बॉटम छोड़ा हुआ है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा बड़ा स्टैंड है तो। इसके अंदर आप अपना माइक प्लेस करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन कट जाएगा, राइट। अगर आपका काम, अगर आप डीजे हैं, उस पर वोकल लेयरिंग कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में हैं जिसका आपका मेजॉरिटी जो काम रहने वाला है वो आपका मिडी पर रहने वाला है, तो उसमें आपको वोकल बूथ, ये वाला जो वोकल बूथ है, बहुत अच्छा आपका पर्पस सर्व करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वी हैव वन मोर वोकल बूथ, ये थोड़ा सा बजट में ज़्यादा रहेगा, जिसमें आप एक वुडन का पूरा कैबिन बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके केबल्स चले जाएंगे और इसको आपको पैक करना पड़ेगा, जो आपका बजट जो है काफ़ी कम कर देगा। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग योर होल रूम, आप इसमें एक पोर्शन रूम का यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, जो आपका पर्पस सेम देगा। इसमें बेटर मिलेगा क्योंकि आपको पूरा एक अलग कैबिन मिल रहा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग रेंट पर रह रहे हैं, या मैं कहता हूँ जो लोग अपना जो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? सबके घर में वुडन अलमीराज हैं, सबके घर में मेटल वाले अलमीराज हैं, राइट? आप अपने अलमीरा में माइक को प्लेस करिए, उसके डोर्स ओपन करके, आपके अलमीरा जो है फिल्ड इन है, वो भी आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। ठीक है, आपका ये हो गया वोकल बूथ। नाउ फॉर दी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो मेन रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, मेन रिक्वायरमेंट मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बता देता हूँ। हम लोगों को बेसिकली रिफ्लेक्शंस कट करने होते हैं। अभी मेरे पास पीछे जो ये है, ये फोम लगा हुआ है, इसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग, ये टाइम के साथ साथ ड्राई हो जाता है। ये आपको जैसा रैट खराब कर देता है कपड़े को, वैसा ये थोड़े टाइम बाद दिखने लगेगा। तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। दिस इज़ जस्ट फॉर दी like interiors and all to give this place studio feel. Apart from it, I have my panels here on my walls जो rock wool से बने हुए हैं। Now what is rock wool and glass wool, मैं आपको ये बता देता हूँ। Guys, class will end by 7:10 or 7:15 because we have a lot of things to cover. So 8:10, 8:10. 8:10, sorry, 8:10, sorry, my bad, 8:10 or 8:15. सो रॉक वूल एंड ग्लास वूल क्या है? रॉक वूल और ग्लास वूल जो है हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, फोम का जैसा ही एक मटेरियल है, बट उसका डेंसिटी ज़्यादा है। उसका डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें ग्लास के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड इंसुलेशन मटेरियल फॉर योर साउंड प्रूफिंग सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ what's better, rock wool or glass wool? I always recommend to use rock wool because rock wool is water resistant. आपके अगर स्टूडियो में AC से वाटर लीकेज आता है, if there is a leakage from the AC, so rock wool में आपके पास वाटर नहीं रहने वाला, राइट? अगर वाटर रहेगा, आपका स्टूडियो बिल्कुल पैक रहेगा, वैक्यूम जैसा रहेगा, उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं ग्लास वूल में। एंड रॉक वूल जो है वाटर रेजिस्टेंट है, तो उसमें कुछ भी नहीं रहने वाला। आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू यूज रॉक वूल इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्लास वूल। ठीक है, नाउ आप जो इसके ऑनलाइन भी पैनल्स देखेंगे कि आप इसके पैनल्स जो हम लोग वॉल्स पे माउंट करते हैं, आप गूगल पे भी देखेंगे। जब भी आप पैनल बनाएं, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन मेकिंग पैनल्स एंड ऑल। आप कभी भी उसको पैनल बनाते हैं, मैं ये शायद आपको किसी किसी उस पर मिले ना मिले, बट आपको हमेशा ये एक तरीके का फोम है जिसे हम बोलते हैं पीयू फोम। ठीक है, पीयू फोम से हमें हमेशा पैनल का जो फ्रंट है उसको कवर करना है, जहाँ पर आप उसके कांटेक्ट में आ सकते हो, या आप उस पर रिक्लाइन करके बैठ सकते हो, लीन करके बैठ सकते हो, आपको वहाँ पर हमेशा उसको पीयू फोम से कवर करना है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जो आपका रॉक वूल है, ग्लास वूल है, वो अंदर डैम्प हो सकता है, राइट? उसमें डेंट पड़ सकता है अगर कोई उसको पुश करता है या कुछ करता है। एंड द मेजर थिंग, उसके अंदर ग्लास है, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको इचिंग कर सकती हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए यू विल यूज पीयू फोम। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग आपको जो ध्यान में रखना है अपना स्टूडियो बनाते टाइम, कि आपको पीयू फोम यूज करना है ऑन पैनल्स। नाउ जिसको पैनल्स नहीं पता, पैनल्स क्या होते हैं, आपका रॉक वूल जो है वो एक शीट के फॉर्म में आता है, विच कम्स इन स्टैंडर्ड साइज ऑफ 39 इंचेस बाय 19 इंचेस। ठीक है, ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी स्टेट्स एंड ऑल, बट इन दिल्ली वी गेट दिस
ये स्टैंडर्ड साइज है 39 इंचेस बाय 19 इंचेस। तो आपके ये ऐसे शीट्स में आता है, जिसको हम लोग एक वुडन फ्रेम बनाते हैं, उसके अंदर उसको फिल करते हैं, उसके ऊपर पीयू फोम आपको हमेशा लगाना है। बट इन सम वीडियोस यू विल सी आप उसके ऊपर आप क्लॉथ लगाते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर क्लॉथ यूज करते हो, तो क्लॉथ के साथ साथ वो ऐसा आपको एक बोर्ड टाइप दिखने लगेगा, बट उसका जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो है आपका साउंड अब्जॉर्ब करने का, आपके रूम्स में रिफ्लेक्शन कम करने का, ठीक है। आपको पैनल्स बनाने के वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नाउ रूम में आप रिफ्लेक्शंस कम कैसे कर सकते हो, मैं आपको उसके आइडियाज दे देता हूँ। अगर if you have the budget, if you have enough budget to invest and you are staying in your own apartment, you have your own house, आपके पास बेसमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, टेरेस का ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपका रहना चाहिए वो आपका रहेगा बेसमेंट या फिर टेरेस, ठीक है। बेसमेंट और टेरेस में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेसमेंट में आपको फ्लोर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, एंड इन द टेरेस यू विल बी हैविंग द बेनिफिट ऑफ, आपको टेरेस आप अवॉइड कर सकते हो, आप अपना सीलिंग अवॉइड कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, जो आपको पूरा ट्रीटमेंट है वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर पहले मैं उनकी बात करूंगा, आई विल टेक दोज हु हैव देयर ओन प्रॉपर्टी, हु हैव देयर ओन स्पेस, आई recommend you to fill your space to cover the maximum area you can, जो आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है आप उतना एरिया रॉक वूल और उसका पैनल से कवर कर लीजिए, ठीक है। एल्स यू कैन कवर ऑल दी वॉल्स, आप सारा वॉल कवर कर सकते हैं, बट कंसिडर योर पॉकेट एंड कंसिडर योर बजट फर्स्ट। नाउ सेकेंड ऑप्शन, अगर आपके पास बजट नहीं है, आप सारी वॉल्स मत कवर करिए, पैनल्स लगाइए। पैनल्स को लगाने का एक फॉर्मूला होता है, एक टेक्निक होता है। आपका जो स्पीकर है, आपका जहां भी डेस्क का प्लेसमेंट है, अभी आपने मेरे कैमरा से पीछे देखा, मेरा जो डेस्क है वो बिल्कुल सेंटर में है वॉल के। स्पीकर्स के साथ साथ आस्क योर फ्रेंड, या आप खुद भी कर सकते हैं, आप एक छोटा मिरर लीजिए, जो छोटा इतना जो मिरर रहता है, या बड़ा ले सकते हैं आप, उसको आपको साइड वॉल्स पे लेकर ऐसे ड्रैग करना है। आपको जहां पर स्पीकर के ड्राइवर्स, जो स्पीकर का वूफर है और जो ट्विटर है उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, वो आपका फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, वहां पर साउंड रिफ्लेक्ट करेगा। पहले आपको वहां पर मार्क करते जाना है और वहां पर आपको पैनल्स इंस्टॉल करने हैं। लाइक दिस यू कैन build your studio, like this you can install your panels, soundproofing panels. Apart from that, इसके अलावा अगर मैं आपको बहुत अच्छा हैक दूं, जो लोग रेंट पे रहते हैं, और ये मैंने खुद भी यूज किया है, खुद भी मैंने ये अप्लाई किया है, आप लोग सारी वॉल्स पर, फर्स्ट थिंग इज रेंट पे आपको इतना freedom नहीं मिलेगा that you can do all things of your own choice, right? You can't drill the holes in the wall in a rented apartment, in a rented property. So what you can do, आप कर्टेन वाले जो रॉड्स हैं आप सारे वॉल्स पर इंस्टॉल करिए, सारे वॉल्स को कर्टेन से कवर कर दीजिए, ठीक है। बट मेक श्योर जो कर्टेन है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें रिंकल्स रहने चाहिए। कर्टेन का जो साइज रहेगा, आपका सीलिंग का स्टैंडर्ड जो साइज रहता है वो 9 फीट से ऊपर रहता है, 9 फीट 10 फीट, तो आपको 9 फीट का ही कर्टेन लेना है। मार्केट में 2 कर्टेन्स अवेलेबल रहते हैं, 7 फीट एंड 9 फीट, आपको 9 फीट का कर्टेन लेना है। आपका जो वॉल साइज है वो 9 फीट रहता है, तो 9 फीट में आपके 3 कर्टेन्स आ जाएंगे फ्लैट। एक कर्टेन का साइज 9/3 होता है अगर आप उसको पूरा ओपन करते हैं, बट हमको उसमें रिंकल्स रखने हैं। तो जहां पर आपका स्पेस अगर 9 फीट है, तो वहां पे आपके 3 कर्टेन्स हैं, मेक यूज 4 कर्टेन्स ऑन दैट वॉल, ठीक है। लाइक दिस यू कैन कवर ऑल दी वॉल्स। इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा बहुत सारे कर्टेन्स का। अगर आपके पास बजट है तो आप वेलवेट के कर्टेन्स यूज करिए, बहुत कंपैक्ट और बहुत टाइट साउंड आएगा। मे बी पॉसिबिलिटी है आपको स्टूडियो में जितना कंपैक्ट है, नॉट लाइक द सेम, बट आपको वेरी क्लोज आपको वहाँ से मिल सकता है अगर आप वेलवेट के कर्टेन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है, उनका थिकनेस ज़्यादा होता है। आप कॉटन, अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता तो आप कॉटन कर्टेन्स भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपका पर्पस सॉल्व कर देंगे अगर आप अपना मिक्स और अपना ट्रैक जो है मॉनिटर स्पीकर्स पे सुनते हो, ठीक है। ये कर सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा,
जो रिफ्लेक्शंस हैं वो बिल्कुल कट हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपका ओनर भी आपको परेशान नहीं करेगा। एंड द बेस्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस, आप अपने कर्टेंस को कहीं भी लेकर जा सकते हो बैग में पैक करके। यू कांट टेक योर पैनल्स, ऑब्वियसली पैनल्स पोर्टेबल हैं क्योंकि वो स्क्रूज से लग रहे हैं, बट कंपेरेटिवली टू कर्टेंस, कर्टेंस आर एनी टाइम गुड टू गो। ठीक है, उसके साथ साथ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जिसमें हम लोग साउंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला, अगर आप बेडरूम, बेसमेंट और टेरेस नहीं चूज कर रहे, आप किसी और फ्लोर पे रहते हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा मेक योर स्टूडियो इन योर बेडरूम, बिकॉज इन योर बेडरूम वहाँ पर जो साउंड को अब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल है वो ऑलरेडी है, विच इज़ योर मैट्रेस, राइट। मैट्रेस आपका साउंड अब्जॉर्ब करेगा बहुत ज़्यादा, तो आपका अगर बेडरूम आपका स्टूडियो बनता है तो दैट वुड बी प्रेफरेबल कंपेयरिंग टू अदर रूम्स। बेड का पोजीशन जो है आपके डेस्क के बिल्कुल पीछे होना चाहिए, ठीक है। साइड में रखोगे उसका आपका इम्पैक्ट कुछ और मिलेगा, अगर बिल्कुल पीछे रहेगा उसका आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा, बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नाउ कम्स योर फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग में आप क्या कर सकते हो, फ्लोरिंग में मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ जो मैंने खुद अपने स्टूडियो में भी यूज़ किया है। इनफैक्ट माय फ्रेंड्स नो मी एज द जुगाड़ू पर्सन, सो मैं आपको जितने भी हैक्स हैं वो सारे ऐसे ही दूंगा जो आपके बजट में फिट करेंगे। हेयर वी हैव द पीयू फोम अगेन, बट नाउ इट्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब ये हमारे पास पीयू फोम जो है वो 1 इंच का है। अगर हम लोग फ्लोरिंग कर रहे हैं, फ्लोरिंग अगर हमारे नीचे वाले फ्लोर पर साउंड जा रहा है, राइट, अगर आप स्पीकर्स में कर रहे हैं तो आपका जो लो एंड है वो ज़रूर ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये कौन ड्राइंग कर रहा है, आदर्श, प्लीज डोंट डू दिस, माई स्क्रीन इज लुकिंग वेरी गुड विदाउट ऑल दीज थिंग्स, प्लीज। नाउ फॉर द पीयू फोम, आप ये फ्लोर पर अगर इंस्टॉल करते हो, इसके ऊपर आप मैट लगाते हो, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस, बिकॉज जो आपका सीलिंग और फ्लोर है वो भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इन दी स्टूडियोज यू विल सी, आपको जो बहुत हाई एंड स्टूडियोज है उसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगा, बट बिलो दैट वुडन फ्लोरिंग वहाँ पर भी इंसुलेशन मटेरियल रहता है। चीपेस्ट ऑप्शन पीयू फोम यूज़ कर सकते हो आप। पीयू फोम के ऊपर वी कैन यूज़ कमर्शियल कारपेट, जो मैं आपको अपने स्टूडियो में दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर अपने स्टूडियो में यूज़ किया है। कमर्शियल कारपेट आपको बहुत चीप मिल जाएगा कंपेरेटिवली टू अदर कारपेट्स, क्योंकि कारपेट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट जो आपको कमर्शियल कारपेट है वो आपको 10 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेके 15 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा। उसमें मैं रिकमेंड करूँगा आप जो भी कारपेट लो उसका जो स्पॉन्ज है बेसिकली वो कम होना चाहिए। वो जितना कम वो वाला मटेरियल रहेगा वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपके स्टूडियो में अगर डस्ट आता है, कुछ आता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसको क्लीन करना, ठीक है। नाउ कम्स योर डिफ्यूज़र। अब डिफ्यूज़र क्या चीज़ है, डिफ्यूज़र हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा, मैं कहता हूँ, वेट अ मिनट मैं शेयर कर देता हूँ, आई होप नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी। ये चीज़ हमारे डिफ्यूज़र्स, वी कॉल दीज थिंग्स डिफ्यूज़र, राइट। अब डिफ्यूज़र क्या है, डिफ्यूज़र ज़रूरी नहीं है कि आपका वुडन का हो या इसी तरीके का हो। आपके रूम में जो नॉर्मल आपका सामान पड़ा है, जो आपके इक्विपमेंट्स पड़े हैं, दे आर एक्टिंग एज डिफ्यूजर्स ओनली। नाउ व्हाट डज दैट मीन, डिफ्यूजर इज, अगर आपका जो अब्जॉर्बिंग मटेरियल है, रॉकवुल है, ग्लास वुल है, उस पर साउंड अगर टकरा रहा है तो वो अब्जॉर्ब हो रहा है। बट हमें दिमाग में ये भी रखना है कि हमें इतना ज़्यादा अब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं यूज़ करना कि हमारे रूम का साउंड डेड हो जाए, हमारे इक्विपमेंट का साउंड डेड हो जाए, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए। वी हैव टू कीप आवर इंस्ट्रूमेंट्स लाइव, वी हैव टू कीप आवर स्पीकर्स लाइव। To keep those speakers live and equipments live, we use diffusers, right, which keeps our instrument live and gives more space to the sound। जो sound की frequencies है उसको distribute कर देता है, sound की waves जो है इससे टकराती है और पूरे room में distribute हो जाती है। तभी यहाँ पर हमने जो wood के logs इसमें install किए हुए हैं, इनका length जो है इसलिए ही वेरिएबल है, सेम नहीं है। अगर आप सेम कर दोगे तो वो एक ही जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा, तभी हम लोग इसको डिफरेंट करेंगे ताकि अलग अलग जगह रहे, ठीक है।
Now I am showing you my studio. Last thing which I am left with is your baffle box. जब भी आप स्टूडियो बना रहे हैं उसमें मेक श्योर करिए आपका फैन नहीं चलना होना चाहिए। जो आपका फैन है वो एक तरीके की नॉइज प्रोड्यूस करता है विच इज़ वाइट नॉइज, जो कंडेंसर माइक में बहुत इजीली कैच हो जाएगी। फैन हम लोगों को यूज़ नहीं करना। गिव प्रेफरेंस टू दी split AC. I am coming on your question, Paras. Wait a minute. जो आपका फैन है वो वाइट नॉइज देगा, सो मेक श्योर आप फैन ना यूज़ करें, स्प्लिट एसी यूज़ करें, क्योंकि स्प्लिट का जो है वॉल्यूम कम होता है। विंडो एसी भी नहीं, क्योंकि विंडो में बाहर का साउंड ट्रैवल करता है। स्प्लिट में हमारे पास ऑप्शंस ये रहते हैं कि आपका जो अंदर ब्लोइंग यूनिट है वो अंदर आ गया और जो उसका कंप्रेसर वाला यूनिट है वो बाहर चला गया, और बीच में जो पाइप है वहाँ से साउंड नहीं आ सकता, विच इज़ इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी गिव प्रेफरेंस टू स्प्लिट एसीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारे पास स्प्लिट एसीज नहीं है, लाइक हम लोग स्प्लिट एसीज सारा टाइम नहीं ऑपरेट कर सकते, एंड इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर ए वोकलिस्ट टू सिंग इन ए कोल्ड एनवायरमेंट। फॉर देम वी हैव दिस थिंग जो शायद आप लोगों ने देखा हो, दिस इज योर बैफल बॉक्स, राइट। अब बैफल बॉक्स का क्या बेनिफिट रहता है, आप यहाँ पर दो वेंट्स देख रहे हो, वन इज फॉर इनलेट एंड वन इज फॉर आउटलेट। नाउ व्हाट वी यूजुअली डू, वी इंस्टॉल एग्जॉस्ट फैन here on one end and the other end is in the studio। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या मिलता है, अब आपके पास बाहर से एयर आ रहा है, तो बाहर से एयर आ रहा है, आपने बाहर से एयर के साथ साथ साउंड को भी अलाउ किया अंदर आने के लिए। फॉर दैट साउंड वी हैव यूज्ड इन दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस ग्रीन थिंग। ये ग्रीन जो है ये आपका इंसुलेशन मटेरियल है, यहाँ पर साउंड अब्जॉर्ब हो गया। इसको आप जितना लंबा रखेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, आप इसमें साउंड इसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो आगे ट्रैवल करेगा वो एयर ट्रैवल करेगा। लाइक दिस वी कैन कीप आवर रूम फ्रेश, ओडोर फ्री। आप ये दो वेंट्स इंस्टॉल कर सकते हो अपने रूम में, एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए, जो आपके रूम को फ्रेश रखेगा, जिसमें आप एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे इंजीनियर्स एंड लेबर्स जो हैं वो अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से रूम में एक स्मेल बैठ जाता है। आप स्टूडियो में जाते हो एक उसमें स्मेल रहता है, राइट। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं। नाउ आई एम शोइंग यू माई ओन स्टूडियो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई होम स्टूडियो। I hope all of you can see. Can you see? Uh, Nope. yeah. So this is my home studio, जो मेरे पास इसी ईयर मैंने इसको डिज़ाइन किया है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर कुछ भी अब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं है, क्योंकि मैं अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा, सिर्फ कारपेट है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर ड्रम्स का थोड़ा सा रेफरेंस लेता हूँ एंड जो इसका नॉइज़ है वो नीचे वाले फ्लोर पर ट्रैवल ना करे, फॉर दैट आई हैव यूज्ड कारपेट। रेस्ट आई हैव kept it very simple and aesthetic। Okay, so this is my home studio setup, in which I have my laptop, I have my monitor, speakers, small mixer, electronic drums, and one MIDI. Okay, here comes my another room. Here it is. So in this room we do recordings and all। अभी यहाँ पर एक window install हो रखा है, इस picture में window नहीं है। As you all can see, I have installed 2 panels here and rest of the walls are fully covered। Okay, so मैंने ये वाला वॉल जो छोड़ा है वाइट वाला, I have left this wall to make my room live, to keep my room live। ठीक है, उसके साथ साथ जो मेरे पास नीचे आप कारपेट देख रहे हो, दैट्स योर कमर्शियल कारपेट। आपको इसमें कुछ डिज़ाइन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बजट टाइट है। फॉर दी ड्रम्स, अब आप अपने अगर स्टूडियो में, अपने होम स्टूडियो में ड्रम्स भी रखना चाहते हैं, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा हैक बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन, बट this has worked a lot better and far beyond my expectation। In this
मैंने नीचे PU forms इंस्टॉल किया हुआ है जो मैंने आपको दिखाया, एंड ऑन दोज PU forms I have kept a flat board of 8x4 size. एक वुडन का बोर्ड रखा है मैंने, ठीक है, कमर्शियल बोर्ड 8x4 साइज का, उसके ऊपर ड्रम्स है, जिसने मेरा वाइब्रेशन जो है बहुत कम कर दिया। बिकॉज इन ड्रम्स आप हाइज जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉट दी लो एंड, नॉट दी वाइब्रेशन। जो अगर आप किसी फ्लोर पर रह रहे हैं तो आपका वाइब्रेशन नीचे वाले फ्लोर तक ज़रूर जाएगा। To reduce that vibration, I have used PU foam, and on that I have kept one board, commercial board. ठीक है? This is my another studio, and here I have one more studio. I gave consultancy for this studio. Here it is. Okay. Now as you can see, जो डेस्क है वो बिल्कुल रूम के सेंटर में है, ठीक है। मॉनिटर्स इक्वली एंगल पे प्रोजेक्टेड हैं। सिटिंग पोजीशन हमारा ये रहने वाला है, इस पर इक्वली प्रोजेक्शन पे इक्वली प्रोजेक्टेड हैं जो मॉनिटर्स हैं। उसके साथ साथ जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स हैं, नाउ इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर बन रहा है, सेकंड यहाँ बन रहा है, दैट्स व्हाई दीज पैनल्स आर हियर। अब यहाँ पर इन पैनल्स को इंस्टॉल करने का क्या हमारा बेनिफिट और हमारा क्या मोटिव रहा है, हम लोगों ने पूरे वॉल्स कवर करे हैं, बट टू अवॉइड रिफ्लेक्शंस, हमारे पास फ्लैट में हमेशा रिफ्लेक्शंस रहता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सारा अब्जॉर्ब हो, और वो होता भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमने रूम को लाइव रखने के लिए और कंपैक्ट साउंड करने के लिए वी हैव यूज्ड मोर पैनल्स, ठीक है। एंड जो ये कॉर्नर्स को कट कर रहे हैं, दीज आर योर बेस ट्रैप्स। बेस ट्रैप्स का क्या हमारा मोटिव रहता है, बेस जो हमारा लो हैंड है उसका वेवलेंथ जो है ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब जो आपका लो एंड है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, इट विल बी देयर फॉर ए लॉन्गर पीरियड comparatively to high and mid frequencies. For those we have these bass traps, ठीक है। I hope I have covered each and everything. Okay, I have one more setup, ठीक है। This is my old setup. Here it is. ये मेरा सेटअप पुराना है जिसमें मैंने डेस्क है, इसके नीचे एज यू कैन सी आई एम नॉट यूजिंग स्टैंड्स बिकॉज मैंने इसी पर स्टैंड्स बनाया है, एंड आई एम यूजिंग फोम हेयर, राइट। द बेस्ट वे इज टू यूज स्टैंड्स, बट इफ यू डोंट हैव द स्पेस सो यू कैन यूज फोम। हमारे पास फोम्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, अमेजोन पे अवेलेबल हैं बहुत सारे फोम्स के ऑप्शन जो आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। आई एम डन फ्रॉम माई साइड, नाउ आई एम टेकिंग डाउट्स वेरी क्विकली। बहुत सारे डाउट्स हैं। कूल सेटअप सर, थैंक यू। सॉन्ग रिकॉर्ड करते वक्त हेडफोन क्यों लगाते हैं, ये मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। हमारे पास हेडफोन्स में क्लिक रहता है, बाकी ट्रैक्स का रेफरेंस रहता है, ठीक है। हाउ टू सेटअप मोबाइल स्टूडियो, ओके। आई हैव वन मोर सेटअप जो मैंने अभी करंटली इसको डेस्क को डिज़ाइन किया है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसका ऑप्शन क्या रह सकता है, हियर इट इज़। So I designed this desk considering that I am in a rented property, and any day I have to move out, मैं इसको यहाँ से ले जा सकूँ। So as you can see I have installed wheels on my desk. यहाँ पर wheels हैं, जो डेस्क का पूरा फ्रेमवर्क है वो मेटल का है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर इसमें 3 बोर्ड्स यूज़ करे हैं, राइट। उन 3 बोर्ड्स को मैंने इस तरीके के लेवल पर रखा है, यहाँ पर मैं अपना मिडी रख सकता हूँ, एक पर लैपटॉप, और स्क्रीन जो है मेरा सबसे हाईएस्ट बोर्ड पर है ताकि वो मेरी आइज से दूर हो जाए और मेरे आइज पर कम इफेक्ट पड़े। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस सेटअप इज दिस टेबल इज आई कैन डिसमेंटल इट। इस टेबल का हाइट जो है वो एडजस्टेबल है, मैं इसको डिसमेंटल करके कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ। आई डिज़ाइन दिस टेबल लाइक 3-4 मंथ्स बैक। आप मोबाइल स्टूडियो के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना जो सेटअप है वो लैपटॉप से करिए, आप कंप्यूटर मत यूज़ करिए, आप लैपटॉप से अपना स्टार्ट करिए। एंड मॉनिटर्स जो हैं आपके छोटे मॉनिटर्स रहेंगे, वुड बी गुड एंड
बेनिफिशियल फॉर यू कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आप साउंड प्रूफिंग मटेरियल के लिए कर्टन्स यूज़ करिए, उसके अलावा कुछ मत यूज़ करिए। दैट्स हाउ यू कैन सेटअप योर मोबाइल सेटअप। हाउ टू प्रिवेंट द साउंड ऑफ अर्थिंग। ओके, सो फॉर दिस आपको इलेक्ट्रीशियन से अपने घर में अर्थिंग का वायर होता है, वो सारे स्विच बोर्ड्स या आप जो भी स्विच बोर्ड यूज़ कर रहे हैं उससे आपको अर्थिंग का वायर करवाना पड़ेगा। अगर आप उसको विदाउट एनी अर्थिंग वायर अवॉइड करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दी पावर स्ट्रिप। पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप आपको वैसे भी यूज़ करना चाहिए स्टूडियो के इक्विपमेंट्स के लिए। कुछ भी फ्लक्चुएशन अगर पीछे से आता है, दैट कैन डैमेज योर स्पीकर, दैट कैन डैमेज योर लैपटॉप और माइक, वट एवर इंस्ट्रूमेंट्स यू आर यूजिंग। फॉर दैट यूज़ अ पावर स्ट्रिप। पावर स्ट्रिप बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा सैमसंग और फरमैन का। इन पावर स्ट्रिप्स में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? बेसिकली दीज आर दी एक्सटेंशन बोर्ड्स, बट ये आपका नॉइस कम कर देते हैं और जो पीछे से फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको आगे नहीं आने देते। बाय दिस यू कैन अवॉइड दिस थिंग। विथ सॉफ्टवेयर इट्स ऑन यू, वट एवर सॉफ्टवेयर यू वॉन्ट टू यूज़, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा आपको कन्वीनियंट और कंफर्टेबल है, आप ये यूज़ करिए। खुद का सॉन्ग कैसे रिकॉर्ड करें? आप जितना ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतने आपके पास आइडियाज़ होंगे, उतना ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जब आप अपना रिकॉर्ड करने बैठेंगे। एंड फॉर रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। आई एम नॉट द सिंगर whomsoever Mayuri. I'm not the singer, I am a drummer and I'm the recording engineer. I'm sorry guys, whomsoever were asking to speak me in English, I used Hindi only, considering that majority of the people here understands Hindi only. We'll keep this in mind. About Mac is a good option. आप iMac भी ले सकते हो। iMac is a one time investment. आप वो ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर आप पोर्टेबल और मोबाइल रखना चाहते हैं, आई सजेस्ट यू टू यूज़ लैपटॉप ओनली। मिडी कीबोर्ड का जो यूज़ है उसमें आप इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग असाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को अफोर्ड करने के लिए बजट नहीं है, and if you know the keyboard very well and if you know the feel of that instrument, so you can use MIDI for that. You can assign that instrument, you can download the plugin of that particular instrument whichever you want to use and assign that on your MIDI keyboard, then you can compose whatever you want to in that instrument. Audient is a good option, Evo 4 अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, आप ये ले सकते हो। एंड साउंड कार्ड के बारे में मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा। अगर आपका मोबाइल सेटअप आप रखना चाहते हो, इनफैक्ट आई एम यूजिंग इट राइट नाउ, Zoom का H6n मार्केट में अवेलेबल है, विच इज़ अ पोर्टेबल रिकॉर्डर और जिसको आप एज एन ऑडियो इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हो। Zoom H6n, अगर आप बाहर जाकर बाहर के सराउंडिंग्स में कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हो, इफ़ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ फिल्म स्कोरिंग एंड ऑल, तो आप उसमें वो भी यूज़ कर सकते हो। Zoom H6n इज़ अ गुड ऑप्शन। इन ईयर मॉनिटर्स नहीं यूज़ करने प्रोडक्शन में, बिकॉज उसमें आपको हेडरूम नहीं मिलेगा। सो डोंट गो फॉर इन ईयर मॉनिटर्स फॉर योर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। यूज़ ओनली हेडफोन्स ओनली। लाइक हेडफोन्स को आप प्रेफरेंस दो अगर आपका मोबाइल सेटअप है और आपके पास साउंड प्रूफिंग नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। HD 4.40 Sennheiser, जो उसका ब्लूटूथ वर्जन है बहुत अच्छा है। इवन आई हैव इट टू। अगर आप Sennheiser के जो हेडफोन्स हैं वो क्लोज टू फ्लैट हैं, मैं फ्लैट नहीं कहूँगा क्योंकि कई हेडफोन्स में कर्व नहीं दिया होता, बट वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ Sennheiser के हेडफोन्स अच्छे हैं। HD 280, HD 200 एंड HD 4.40 BT जो है वो मेरे पास है, विच इज़ ए हाइब्रिड मॉडल। आप उसको ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हैं, उसको वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड ऑप्शन। एम्प्टी एक्ट्रेस कभी भी नहीं यूज़ करना प्लीज़, वो आपके वॉल्स को डैमेज कर देगा, आप होल्स करते रह जाओगे उसमें। एक्ट्रेस नहीं यूज़ करने। और उसमें जैसा आपको पता है कि एक्ट्रेस में सिर्फ आपके पास पीक्स रहते हैं, उसमें अलग अलग लेवल पर आपका एक्ट्रे मैन्युफैक्चर्ड है, उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा बेटर होगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो प्लीज़ डोंट डू दैट।
and whomsoever is asking for my WhatsApp number, sorry, you can ask whatever you want to hear only. He's too fast. Sorry, I had to be fast because there were so many things. In fact, I am left with so many things right now. My plan was to show my studio, but हमारे पास time नहीं है. I'm taking the questions. I think we can end the session now, for sure. Yeah, I am almost done. I am just making sure कि हमारे पास कुछ important question नहीं रह जाए. Give me 2 minutes, just 2 minutes, guys. ओके, सो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. मेरे पास मोबाइल स्टूडियो का बहुत बार क्वेश्चन आया है मृन्मय पॉल से. आई गेस नाउ यू आर सेटिस्फाइड एंड नाउ यू हैव योर आंसर. गाइस, मॉनिटर स्पीकर्स में आप पारस वट एवर यू आर फेसिंग प्लीज राइट हेयर. मैं आपका क्वेश्चन लास्ट लूंगा. आप मॉनिटर स्पीकर्स का जो साइज ले रहे हो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके का म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो. दिस स्टैंडर्ड साइज इज 5 इंचेस. गो फॉर 5 इंचेस. सेकेंड क्वेश्चन, आप अगर जो आपके पास बाहर का नॉइज आ रहा है, ठीक है, बाहर का नॉइज जो आ रहा है दैट्स आइसोलेशन. अगर आपके रूम में विंडोज हैं, आप वहां पर यूपीवीसी विंडोज लगवा लीजिए. यूपीवीसी विंडोज विल वर्क वेरी गुड एंड वेरी इन अ बेटर वे. आइसोलेट कर देंगे आपका रूम पूरा. डोर से अगर आपके पास साउंड आ रहा है वो आपके घर का है या बाहर का है, तो डोर पर भी आप पैनल इंस्टॉल कर सकते हो और उसके नीचे आप एक स्ट्रिप इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा बहुत इजीली. डोर क्लोजर होता है वो आपको कुछ वैसा काम कर देगा. बट द बेस्ट व्हाट यू कैन डू, जो आपका डोर जिसमें बंद होता है, जो उसका फ्रेम होता है, फ्रेम को आप नीचे इंस्टॉल करवाओ और डोर पूरा पैक कर दो. लाइक दिस यू कैन अवॉइड दी आउटडोर नॉइज. ठीक है. पारस गोयल. okay, so I guess now you have your question. Now you have your answer of your question जो आपका बाहर का sound आ रहा है. Guys, I am done from my side. I really hope you guys had a very good time and this session will be helpful and productive for you. आपको I hope बहुत सारे answers मिल गए हों. जो आपका क्वेश्चन रहता है, जितना क्वेश्चंस थे मैंने कवर करे हैं बहुत सारे. And thank you to those who are complimenting. Thanks to Ishan sir who is here from front row for giving me this opportunity. I'm glad guys that you liked my session. Hope to see you in the next session guys. Till then, take care. Myself Harshit Kumar signing off for this session. Thank you guys. Take care. Bye bye. Bye. Also, guys, we have another session tomorrow, which will be about how basics of Hindustani classical. So it's at 5 p.m. So don't forget to join that. And also, if you guys like this session, please give us a thumbs up or something in the chat box so that we can conduct more sessions like this. I hope this session was helpful to you all. Wow, nice. Okay. Thank you so much, guys. Take care. Bye bye.